Hi friends, once again welcome to online education of Parishram School. Today we are going to start 5th unit from your Vistas book. It is a very small and interesting unit and it tells a lot about human psychology, child psychology and many things more. The title of the unit is Should Wizard Hit Mommy? एंड द राइटर इज जॉन अपडाइक. ये आपको याद रखना है टाइटल, और उसके राइटर का नाम है जॉन अपडाइक. बिफोर यू रीड, लेट्स हैव a brief information about the unit. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. So there are two main characters, father and daughter. Let's begin the story. In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. It was the routine and it was the habit of the daughter to listen to a story from her father every day. At what time? In the evenings. So daily, every evening and for Saturday naps. और सैटरडे की नैप यानी शॉर्ट स्लीप जो हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? नैप. तो सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, जैक told his daughter Jo a story out of his mind. जैक डॉटर जो को अपने दिमाग में बनी बनाई स्टोरी, it was the habit to tell her a story. This custom began when she was 2 and was itself now nearly 2 years old and had felt empty. When she was just 2 months old, this custom began. And now she is 2 years old. Every day new story, अपने दिमाग में से बनाई हुई स्टोरी उसको सुना कर फादर जैक का माइंड हैड बिकम एम्प्टी. हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. Each new story was a slight variation of a basic tale, but there was a basic tale and Jack did slight variation. Slight variation, it means छोटा सा चेंजेस वो करके, थोड़ा सा वेरिएशन करके, बेसिक स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस करके वो डेली अपनी डॉटर को इवनिंग में और सैटरडे को नैप के टाइम पे वो स्टोरी सुनाता था. विच वॉज द बेसिक टेल? बेसिक टेल कौन सी थी? आपको एग्जाम में शायद पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है. अ स्मॉल क्रीचर, एक स्मॉल क्रीचर आता है usually named Roger, or generally the name of the creature was Roger. फिर एनिमल चेंज हो जाता है लेकिन नेम तो सेम ही रहता है. कौन सा? रोजर. फॉर एग्जाम्पल आज मैं फिश की बात सुनाने वाला हूं तो रोजर फिश. स्क्विरल होगी तो रोजर स्क्विरल. चिपमुंक होगा तो रोजर चिपमुंक. चिपमुंक एक स्क्विरल जैसा अमेरिकन एनिमल है जो अमेरिका में ही पाया जाता है और वो गिलहरी प्रजाति का एनिमल है. क्या नाम है उसका? क्या कहा जाता है उसको? चिपमुंक. हैड सम प्रॉब्लम. कोई भी क्रीचर, उसका नाम कोई भी रख लो, नाम तो रोजर ही रहेगा लेकिन क्रीचर कोई भी हो, उसको कोई प्रॉब्लम आता है एंड वेंट इट to the wise old owl, and for the solution of the problem that Roger creature went to the wise old owl. wise old owl के पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये रोजर क्रीचर जाता था. The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem. और वो क्रीचर आउल के पास जब जाता था तो आउल उसे बोलता था कि आप विजार्ड के पास जाइए, मैजिशियन के पास जाइए, और मैजिशियन परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, वो कुछ जादू करता, एंड दैट सॉल्व प्रॉब्लम.
demanding in payment a number of penny greater than the number of Roger creature had. But in reply, what happened that the owl demanded payment and the amount was greater than Roger creature had. रोजर क्रीचर के पास जितने पैसे होते थे उससे ज्यादा पैसे वो ऑल डिमांड करता था कि मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैंने आपके मैजिक स्पेल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो इसके बदले मुझे इतने रुपीस दे दो. But in the same breath, directing the animal to a place where the extra penny could be found. फिर वो क्रीचर उसको बोलता उसके पास पैसे नहीं है, तो ऑल हिमसेल्फ गाइडेड द क्रीचर टू गो टू अ प्लेस वेयर ही हैड केप्ट एक्स्ट्रा पेनी. जहां पे एक्स्ट्रा पेनी रखी हुई होती है, आप वहां पे जाओ और जाके वो पैसे भी लेके आओ और मुझे दे दो. But in the same breath, directing the animal to a place where the extra penny could be found. Then Roger was so happy, he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. The Roger was so happy, और इसके बाद रोजर इतना खुश हो जाता था कि वो अपने दोस्तों के साथ, अदर क्रीचर्स के साथ गेम्स प्ले करता था और वेंट होम टू मदर जस्ट इन टाइम. अपने टाइम सर, अपने टाइम के हिसाब से इन टाइम वो अपनी माँ के पास पहुंच जाता था. क्यों? टू हियर द ट्रेन व्हिसल, ट्रेन व्हिसल को सुनने के लिए. Why was he interested in train whistle? Because that brought his daddy home from Boston. क्योंकि उसी ट्रेन में उसके डैडी बोस्टन से घर वापस आते थे. So he liked the whistle of the train very much. So इस पेज में हमने क्या सीखा? तो Jack is the name of the father and his daughter's name is Jo. Jo is the short name of Joanna. Full name is Joanna. She had the habit of listening a story every day and even at the time of Sunday naps. Her father Jack told her a story out of his mind, and when she had become 2 years old, his mind had become empty. There was a basic tale, and in the basic tale, every day creature was different, but the name of the creature was same, and which was Roger. Roger Fish, Roger Frog, or many others. The creature was in trouble, and the creature went to Owl, and Owl sent the animal to Wizard. Wizard performed a spell and demanded money, which the creature did not have. So the wizard told him the place where the extra penny kept. The creature brought the penny and everything was fine. Problems are solved. All were happy. Roger creature played with his friends and returned home before the arrival of his father. So Jack described their supper. और दूसरा क्या वो करता था, फिर जैक, इसके पापा उसको बोलते थे कि वे लोग सपर कैसे करते थे. एंड द स्टोरी वॉज ओवर. और इसी तरह स्टोरी का एंड हो जाता था. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday, because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem fertile. Working his way through this scheme, especially on Saturday. सैटरडे को ये थोड़ा फटीग वाला लगता था. फटीग वाला यानी थका देने वाला, टायरिंग, उसको टायरिंग लगता था, क्योंकि उसके इतने एफर्ट्स के बाद भी जो कभी नैप्स के टाइम पे सोती नहीं थी. और इसीलिए उसका ये जो राइट है, राइट इट मीन्स प्रथा, सेरेमोनी, सिस्टम, फ्यूटाइल इट मीन्स मीनिंगलेस, निरर्थक. और उसको ये सिस्टम निरर्थक, फ्यूटाइल लगती थी कि ये सैटरडे को क्यों स्टोरी सुनती है.
स्टोरी सुनने के बाद भी वो सोती तो है नहीं, इसलिए जैक को सैटरडे की स्टोरी टेलिंग फटीग वाली लगती थी। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। द लिटिल गर्ल, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. At the time of nap and double bed, she used to sleep in double bed. She was not so young, she was not so little because her feet were coming down from the bed. The little girl had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. उस दिन भी, उस सैटरडे को भी वो जो अपने आप को उसने सेटल कर लिया। कहाँ पे सेटल कर लिया? वो बेड में सेटल कर लिया और उसका प्लफी फैट फेस है वो पिलो में शाइन कर रहा था। कैसे शाइन कर रहा था? जैसे ये शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी शॉर्ट प्लेस में से जब लाइट अंदर आती है तो उसे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बोलते हैं। तो वहां से वो सो गई थी और अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया था। कोई ऐसा जादू हो जाए कि वो सो जाए सैटरडे को, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। कोई मैजिक स्पेल करेंगे तो शायद उसको सो जाने की घटना बन सकती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका भाई बॉबी 2 months old था and already asleep with his bottle. Who shall the story be about today? Jack asked. स्टोरी शुरू हुई इसकी पहले की बात हमको बताई गई है कि पिलो में से अपना हेड एडजस्ट कर दिया है। उसके फेस पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसलिए उसका फेस शाइन कर रहा है। तो जैक ने एज यूजुअल उसको पूछा कि आज किसकी स्टोरी सुनोगे? Roger, Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. रोजर, उसने तो अपनी आइज को जोर से बंद कर दिया, स्क्वीज कर लिया, दबा दिया और बोला एज यूजुअल रोजर्स, और उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे कि वो सुन रही है। Her eyes opened and her mother's blue skunk, she said firmly. और फॉर्मली उसने बोल दिया आज मैं स्कंक की स्टोरी सुनूंगी। स्कंक इज अ स्मॉल अमेरिकन एनिमल। अमेरिकन का एक ऐसा मांस भक्षी, वो नेवला होता है ना, जिसे हम गुजराती में नोड़ियो बोलते हैं, उसके जैसा दिखने वाला एनिमल, उसे क्या बोलते हैं? स्कंक। लेकिन स्कंक का एक माइनस पॉइंट है कि उसके अंदर से बड़ी जोर से बदबू आती है, बड़ी गंदी बदबू आती है। इसीलिए कोई उसके पास, ये एनिमल जब भी दिखता है तो सबको पता चल जाता है कि आज स्कंक निकला है, इतनी गंदी बदबू उसमें से आती है। इट इज फाउंड ओनली इन अमेरिका। तो आज मैं स्कंक की स्टोरी सुनूंगी, उसने फॉर्मली बोला। A new animal. They must talk about skunks at nursery school. शायद जैक ने ऐसा इमेजिन किया कि उसने नर्सरी स्कूल में, अपनी स्कूल में स्कंक की स्टोरी सुनी होगी। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to a creative enthusiasm. Oh, आज तो न्यू हीरो आएगा। ये हैविंग वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट करना, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करना, हम जब मिलेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी। ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। ऑल राइट, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. तो उसने तो स्टोरी शुरू कर दी। Once upon a time in the deep dark woods,
गीच घने जंगलों में Once upon a time there was a tiny little creature, एक छोटा सा लिटिल क्रीचर था और उसका नाम था स्कंक। और फाइनली कोई भी एनिमल की स्टोरी हो उसका नाम तो क्या रहता था, रोजर। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। यस, जो सेड, जैसे कि उसको पता हो। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. So that ये रिजल्ट दिखाता है, he smelled so bad, उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, that none of the other little woodland creatures would play with him. कोई भी छोटा क्रीचर्स वुडलैंड में उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, solemnly it means सीरियसली, थोड़ी सी दुख के साथ, उसका ऑपोजिट होता है चीयरफुली। तो आपको उसका मीनिंग अब पता चल गया होगा। सो जो लुक्ड एट हिम solemnly, she hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. जैक को आज मजा आ रहा था क्योंकि न्यू क्रीचर था, तो उसने सोचा अच्छा चलो नई स्टोरी आज हम सुनाएंगे। तो जैक ने कंटिन्यू किया एक नई जेस्ट के साथ। Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. साथ में उसको अपने बचपन में, उसकी चाइल्डहुड में जो ह्यूमिलिएशन फेस किया था वो भी उसको याद आ गया। जब भी स्टोरी हमने शुरू की थी मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह से व्यू कर लिया है। जब जैक अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता था, जिस एनिमल के बारे में बता रहा था, उसके साथ साथ उसको अपने बचपन का ह्यूमिलिएशन भी याद आ रहा था। सो Jack continued with zest, remembering certain humiliation of his own childhood. All of other tiny animals would cry. ओहो, जब भी वो खेलने जाता था तो दूसरे एनिमल्स उसे देखकर क्या बोलने लगते थे, ओहो, here comes Roger Stinky Skunk. कोई उसे रोजर स्कंक नहीं बोलता था, उसको स्टिंकी स्कंक बोलता था। जिसमें से बदबू आ रही है, जो स्टिंक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्टिंकी बोलते हैं। अरे देखो वो स्टिंकी स्कंक आ गया, एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज। ये सुनकर रोजर स्कंक बहुत दुखी होता था। ओफो, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, देखो आ गया स्टिंकी स्कंक। और ये सुनकर सब लोग चले जाते थे, रन अवे यानी भाग जाना। और रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वो अकेला रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उसके आंखों के आसपास 2 बड़े बड़े आंसू आ जाते थे। The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lips bent forward as he traced with finger along the side of her nose and course of one of Roger Skunk's tears. ये सुनकर जो का माउथ भी ड्रूप हो गया, उसका लिप्स भी डाउन हो गया और वो भी दुखी दिखने लगी। ये थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है तो हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा हेल्प के लिए? Sitting on the bedside her, Jack felt the covers tugged as her legs switched tensely. उसके बेड के पास ही अपने डैडी बैठे थे और उसने थोड़ा सा उसके लेग्स में टेंशन फील किया। He was pleased with this moment. इसके साथ पापा खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उसको अब पता चला कि उसकी बेटी इमोशंस को फील कर रही है।
He was telling her something true, something she must know, or he was satisfied that he was telling right thing to his daughter, and his daughter was also emotionally responding. So he was very happy and had no wish to hurry on. और उसको स्टोरी को कंप्लीट करने की हरी नहीं थी, क्योंकि he himself was enjoying the new story and he was thinking that I am telling the right story at the right time to my daughter. But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodmark. बट डाउनस्टेयर से नीचे के फ्लोर से उसको चेयर के स्क्रैप होने की आवाज आई। चेयर कोई घिसट कर ले जाता है, उसकी आवाज आई और उसको ये रियलाइज हुआ कि उसको क्लेयर की हेल्प के लिए नीचे जाना चाहिए। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old. अब स्कंक उसके देखकर सभी फ्रेंड्स चले गए तो स्कंक बहुत ही दुखी हुआ और as usual for the solution of his problem he went to an owl. Where was the owl sitting? The owl was sitting in the tip top of the tree and it was really an enormous wise owl. अब जो खुश हो गई, गुड, ये उसने अच्छा किया क्योंकि वो अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। Mr. Owl, Roger Skunk said, all other little animals run away from me because I smell. Sorry. All the other little animals run away from me because I smell so bad. सब मेरे पास से चले जाते हैं, भाग जाते हैं मेरे पास आके। Why? Because I smell so bad. So you do. The owl said, of course, I also agree with other animals that you are so stinking and you smell very bad. Very, very bad. What can I do? आपके अंदर से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, अब मैं क्या करूं? रोजर स्कंक said and he cried very hard. अब तो रोजर स्कंक बहुत ही रोने लगा। The wizard, जो shouted. अब तो जो भी बेसिक स्टोरी तो जानती ही थी, तो वो भी बोलने लगी, विजार्ड के पास जाओ, मैजिशियन के पास जाओ, and sat right up and little golden book spilled from the bed. और वो तो सोई थी, उसमें से बैठ गई, she sat up. Now जो daddy is telling the story, do you want to tell daddy the story? क्या आप ऐसा समझते हो कि डैडी आपको स्टोरी करे? No, you me. Then lie down and be sleepy. तो फिर आप सो जाइए और lie down. Her head relapsed onto pillow and she said, out of your head. Her head relapsed, वो आ गया, relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? ऑल ने सोचने ही लगा कि इस बड़ा प्रॉब्लम है, आपके अंदर से बहुत ही बदबू आ रही है, आपको देख के सब चले जाते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? तो वो सोचने ही लगा, फिर उसने बोला, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड? क्या आप विजार्ड को मिलने क्यों नहीं जाते? डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? तो मैजिक स्पेल्स सच्चे होते हैं? This was a new phase. ये अब छोटी बच्ची का नया फेज आ गया। Just last month a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned on her mothers and asked, do they really? Last month भी ऐसा हुआ था कि जब जैक ने उसे स्पाइडर की स्टोरी की थी जिसमें स्पाइडर बग्स को खा जाता है, तो वो अपनी मम्मा के पास गई थी और उसने पूछा था, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted, why a sly yet eager smile? तो
क्लेयर ने उसे ऐसा बताया था कि स्काई में गॉड है और गॉड सब कुछ देख रहा है, हमारे आसपास ही है। तो फिर वो वापस अपने पापा के पास आई और उसने वो पूछा कि इंसिस्टेड विथ अ स्लाई येट ईगर स्माइल, उसके चेहरे पर वो स्लाइली कनिंग स्माइल थी। इज ही रियली, माँ ने बोला कि गॉड हमारे आसपास है। तो उसकी स्लाई के साथ की स्माइल से उसने पूछा कि रियली गॉड हमारे आसपास है? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली. She had made him miss a bit in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek." Creek? What is a creek? Creek यानी a small river. तो फिर अब हम फिर से स्टोरी में आ जाते हैं। तो आउल ने बोला कि आप डार्क वुड में से एप्पल ट्री के नीचे जाओ, ओवर द क्रीक, स्वैम्प यानी जो दलदल होता है ना, ओवर द स्वैम्प, दलदल होता है, उसके ऊपर एक क्रीक है, वहां पे आप जाओ। क्रीक यानी छोटी छोटी सी नदी, अ स्मॉल रिवर। व्हाट इज अ क्रीक? जो ने पूछा क्रीक क्या होती है। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, अ गोल्डन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। Goodbye friends and thank you very much.